All right, so let's get started with today's session. Today we are going to have Python and we'll be learning about functions. Okay, so we'll learn everything about functions. I have seen some of you already are using function, which means you have some exposure to functions, maybe from Python or maybe another language, but the concepts are same. Okay, in most of the modern languages, you will see, in fact, functions were also present in the older languages. So functions are something which are present in most of the languages, including Python. So we'll learn about them, and they're pretty useful to learn because they'll be used a lot of functions. In fact, you have already used functions unknowingly or knowingly, maybe uh, in the daily assignments that we do or any code that you have seen earlier. Okay. All right. So without further ado, let's get started. Session, by the way, people who have not submitted assignment number 5, I'll be sending out a note saying that who all have, but assignment number 6 will be shared soon. The sample solution to assignment number 5 is already shared. I want to know how many people are actually reading the sample assignments. So if you can either go and comment in that sample assignment that you have seen it, or you can at least give it a thumbs up, some kind of a feedback which tells me that you have already seen the assignment and you already read the assignment. Okay, so so that I know that you all are actually reading the sample assignments, and the sample assignments at the time I put in creating the sample assignment is useful for you too. Okay, so give me some feedback there. Just maybe go and comment there, or just give it a thumbs up so that I know. All right. And the people who are submitting on time, what I'm doing is I am checking their assignments, and if it looks correct to me, I am giving a upvote to them. Okay. So if you see a upvote, and that means you have submitted the assignment in time, and it's correct. Okay, if you don't see an assignment upvote from one of the on the one of the recent assignments, you can assume that either something is missing, or uh, you have not submitted on time. Okay, so the late submissions, there won't be any upvote or anything, but the people who submit on time, they'll get an upvote on their assignments. All right, so let's get started. So we have studied about control flow, और कंट्रोल फ्लो में हमने सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो के बारे में पढ़ा, कैसे कोड ऊपर से नीचे एग्जीक्यूट होता है पाइथन में। कंडीशनल फ्लो के बारे में पढ़ा, इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा। ओके, लूप के बारे में पढ़ा, जैसे कि फॉर लूप, व्हाइल लूप, राइट? सो वी हैव स्टडीड three main types of control flows. Today we are going to talk about the fourth major type of control flow, which is function and procedure control flow. So functions are reusable code which you write in a certain block, and you name that block. Okay, and then you keep on reusing the same code. This helps you to not have many repeated parts in your code. Right? For example, if addition of something needs to be done, uh, then maybe it's a very crude example, but in doing addition, maybe you have other things, right? So taking an average. So average के लिए क्या लगता है? You take a list, उसके बाद में लिस्ट में के सबका एडिशन लेते हो, फिर उनको डिवाइड करते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, राइट? सो दैट वुड बी 3 to 4 lines of code, and every time you have to do an average, you have to repeat that 3 to 4 lines of code again. Okay, so instead of that repeating 3 to 4 lines of code every time, or maybe a little longer code every time, you can wrap that thing into a function and you'll use that function. इससे क्या होगा? अगर आपको चेंज करना है कोई भी चीज, अगर आपको एवरेज निकालने का तरीका चेंज करना है, कल को आपको कोई और तरीके से एवरेज निकालना होगा, मे बी नॉट द वे यू डू इट राइट नाउ, राइट? सो इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड changing it into 100 different places जहाँ पे एवरेज निकाला है, you'll just change it in one place. So that's easier to organize, right? और easier to fix also. अगर कुछ issue रहेगा आपका एवरेज निकालने में, तो आप
सिर्फ उसी फंक्शन में जाके चेंज करोगे एंड दैट इशू इज फिक्स्ड, यू डोंट हैव टू गो एंड चेंज इन मल्टीपल लोकेशंस. ठीक है. So these are some of the main reasons why we have functions in most of the programming languages. It makes programmer more readable, maintainable, and split into small modules. छोटे छोटे modular format में you can ship your functions or ship your code. Function has a structure. फंक्शन को जब आपको डिफाइन करना होता है, जैसे आप वेरिएबल डिफाइन करते हो तब क्या करते हो, वेरिएबल का नाम देते हो, इक्वल टू बोलते हो और उसको वैल्यू असाइन करते हो. करेक्ट. उसी तरह से फंक्शन में को अगर आपको डिफाइन करना है तो यू हैव टू से डीईएफ, डेफ. ओके, दैट्स द कीवर्ड. डेफ स्पेस देना है, फिर गिव द नेम ऑफ द फंक्शन. यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है. लेट मी शेयर द होल स्क्रीन सो दैट व्हेन आई मूव माय माउस यू शुड बी एबल टू सी इट. ऑलराइट. सो you have this function which is on the right side. def कीवर्ड है. ये फंक्शन का नाम ऐसा देना होता है. यू कैन गिव एनी फंक्शन नेम. एंड जैसे कि वेरिएबल के नाम में जो रेस्ट्रिक्शंस है वही रेस्ट्रिक्शंस आपके फंक्शन के नाम में भी होते हैं. फॉर एग्जांपल नॉट स्टार्टिंग विद अ नंबर, नॉट हैविंग स्पेशल कैरेक्टर्स एंड सो ऑन एक्सेप्ट अंडरस्कोर. फिर ओपन ब्रैकेट राउंड वाला, num1 num2, इनको बोलते हैं पैरामीटर्स. ओके, इनको बोलते हैं पैरामीटर्स. सो दीज आर द पैरामीटर्स टू दिस फंक्शन. ये फंक्शन क्या कर रहा है, दो नंबर्स को ऐड करना है मुझे. ये मेरा नंबर 1 है, ये नंबर 2 है. इन दोनों को ऐड करने का काम ये फंक्शन कर रहा है. ऐड करने के बाद में इसका जो सॉल्यूशन रहेगा, आंसर रहेगा, वो रिटर्न करना है. तो वो आपको रिटर्न स्टेटमेंट में डालना है ऐसे. ओके. सो दिस इज द फॉर्मेट इन विच यू गिव अ फंक्शन. यहाँ पर फंक्शन सिर्फ डिफाइन हो रहा है. ओके. जब मैं ये लिख रहा हूँ डेफ एड num1 num2, यहाँ पर मेरा नंबर 1 और नंबर 2 का वैल्यू कुछ पता है क्या मुझे क्या है? If I'm just writing this here, right, there is no value here. नंबर 1 नंबर 2 का वैल्यू क्या है पता नहीं है मुझे. ठीक है. ये वैल्यू जो होती है वो मुझे जब मैं फंक्शन को कॉल करता हूं तब देनी होती है. ओके. दीज आर कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट्स. सो ये 2, 4, इसका मतलब क्या है, जिस सीक्वेंस में यहाँ पर आपको पैरामीटर्स दिख रहे हैं उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे आर्गुमेंट सेंड करने हैं. तो ये 2 है वो नंबर 1 हो जाएगा, 4 है वो नंबर 2 हो जाएगा. ओके. फिर उसके बाद में ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा लाइन बाय लाइन. इसका मतलब होता है num1 इज इक्वल टू 2, num2 इज इक्वल टू 4, एंड देन यू विल बी प्रिंटिंग देम एंड देन यू विल गेटिंग द एडिशन, और उसका आंसर रिटर्न होगा. जो भी चीज रिटर्न होता है वो इस रिजल्ट को असाइन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन है. ओके. सो रिजल्ट इक्वल टू add which is the function name, open bracket 2, 4. ओके. इक्वल टू लिखा है इसका मतलब ये फंक्शन कुछ रिटर्न करने वाला है. ओके. यू कैन ऑल्सो नॉट असाइन अ वैल्यू, बट यूजुअली अगर कुछ रिटर्न होता है तो आप असाइन करते हो वैल्यू को. राइट. यू नीड द रिजल्ट. फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो उसको उसका रिजल्ट चाहिए आपको, इसलिए कॉल करो ना फंक्शन को. तो जो भी फंक्शन उसको कॉल करो, get the value, store it in the result, and you're just printing it. So this is very simplistic example of a function. रियल लाइफ में आपको बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शंस देखने को मिलेंगे जब आप कंपनी में भी जाओगे या फिर खुद भी लिखोगे. धीरे धीरे जब आप कॉम्प्लेक्स कोड लिखना शुरू करोगे तब आपका कोड में जो फंक्शंस वगैरह होंगे ज्यादा बड़े बड़े होते जाएंगे और कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे. ओके. अभी ये जो फंक्शन है ऐड का, ठीक है, ये ऐड का फंक्शन, इसके अंदर एक और फंक्शन कॉल किया है, प्रिंट नाम का फंक्शन. करेक्ट. प्रिंट भी एक फंक्शन ही है. राइट. प्रिंट ओपन ब्रैकेट round bracket num1 comma num2. Right. So these are the arguments to this particular function. Okay. अभी जिस तरह से आपने if else स्टेटमेंट्स में इंडेंटेशन दिया था, ऐसे टैब देके यू स्टार्टेड राइटिंग, राइट. ये टैब देने के बाद में आपको पता चला कि दिस इज ऑल पार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट एंड एल्स स्टेटमेंट, फॉर लूप. वैसे ही टैब देने से पता चलता है कि ऑल ऑफ दिस कोड इज पार्ट ऑफ दिस फंक्शन. दैट्स व्हाई यू विल सी इंडेंटेशन देयर. Okay. That's why you'll see the indentation here like this.
तो दिस टैब दिया मतलब ये सारा कोड इज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, जिसको बोलते हैं हम फंक्शन बॉडी. ऑलराइट, you don't have to remember these names, but it's good if you remember. Okay? You just have to know how to create a function. You have to know what that these are called parameters, and you have to know that these are called arguments. And this is the return. Return करने के लिए return space addition, जो भी आपका return करना है आपको value. So look at it for some time and let me know if you have any questions here. All right. So now let's move on to the next slide. जैसे मैंने बोला था आपको, यहाँ पे आपका फंक्शन डिफाइन किया हुआ है. जब आपने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है तब कोड कॉल नहीं होता. जब आप कोड को कॉल करते हो, दिस इज द वे यू कॉल इट. ठीक है, ये 5 असाइन होता है नंबर 1 को, 4 असाइन होता है नंबर 2 को. दिस इज व्हेन द कोड इनसाइड दिस फंक्शन गेट्स एग्जीक्यूटेड. यहाँ पर सिर्फ कोड को डिफाइन किया गया है, यू आर जस्ट राइटिंग. ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है. एग्जीक्यूट कब होगा? जब ये कॉल होगा तभी एग्जीक्यूट होगा. इसके अंदर कुछ एरर भी होगा तो भी जब ये कॉल होगा तभी पता चलेगा हमें. ऑब्वियसली अगर इंडेंटेशन एरर्स होंगे तो पहले ही पता चलेंगे, सिंटैक्स एरर्स. लेकिन अगर कुछ कोड में एरर रहेगा या फिर कोई एक्सेप्शन आने वाला होगा, तो एक्सेप्शन आपको डिफाइन करते वक्त नहीं आएगा. जब आप उसको कॉल करोगे और जब वो एग्जीक्यूट करने जाएगा तब आपको एरर आएगा. ओके, नाउ लेट्स फॉर्मली टॉक अबाउट पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स. पैरामीटर्स जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ए और बी, सो दीज आर जस्ट प्लेस होल्डर्स, ताकि आप जब वैल्यू सेंड करोगे तो आपको पता चले ये प्लेस होल्डर किसकी वैल्यू है. राइट, so this a is a placeholder of some value which is going to be passed. b is a placeholder of some value which is going to be passed. Okay, यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि b की वैल्यू हमेशा इंटेजर रहेगी या फिर न्यूमेरिक रहेगी, और a की वैल्यू भी न्यूमेरिक रहेगी. दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड. तो आप जब पास करोगे तो आप यू विल मेक श्योर दैट यू आर पासिंग न्यूमेरिक वैल्यूज हियर. ओके, तो इनको बोलना है पैरामीटर्स. जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ए और बी आर फंक्शन पैरामीटर्स. ओके, जब आप उसको कॉल करते हो तो पैरामीटर्स को कुछ वैल्यूज असाइन होने वाली है. ओके, तो इनको बोलना है आर्ग्यूमेंट्स. सो दीज आर योर फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स एंड these are your function parameters. ठीक है, there's a slight nomenclature difference. Sometimes people will use the same name, but since we are learning it formally, हमें पता रहना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं. ओके, ये कोड क्या कर रहा है? एडिशन कर रहा है और रिटर्न रिजल्ट कर रहा है. ठीक है, कैन यू राइट अ कोड टू डू to append two strings? Let's say instead of sending here, I want to call a function which is going to be like this. ठीक है, I'll call it concat. ठीक है, concat नाम का फंक्शन क्रिएट करो आप, जहां पर मैं दो स्ट्रिंग सेंड करूंगा आपको, हेलो और स्टूडेंट्स. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू कॉल. ओके, इसका आउटपुट रहना चाहिए, आउटपुट रहना चाहिए हेलो स्पेस स्टूडेंट्स. ओके, ये आउटपुट होना चाहिए इसका. कैन यू गाइस राइट अ फंक्शन? मैं ये स्लाइड ओपन करके रखता हूँ तब तक. ठीक है, सो दैट यू नो हाउ टू राइट अ फंक्शन. आउटपुट आई वांट इट टू रिटर्न. ठीक है, आउटपुट बोल रहा हूँ मैं. आई वांट इट, मुझे प्रिंट नहीं करना है, मुझे बस रिटर्न करना है कॉन्कैटिनेट करने के लिए. ठीक है, टेक सम टाइम, राइट अ फंक्शन फॉर दैट.
Someone sent the answers yet? Okay, correct. So that's how you do it. Right? So this is the right answer. Okay, यहाँ पर क्या किया है, दो पैरामीटर सेंड किए, string 1 string 2, और these are my arguments, hello and students. Just add them. रूपाली ये गलत है. You don't do define concat and then you give, ये प्लेस होल्डर्स होनी चाहिए. So this has to be values. This has to be variables. ये आपने values भेज दिए यहाँ पे. These are arguments. Hello और students are arguments. That's not how would you do it. ठीक है. We want parameters. जैसे कि ये पैरामीटर है, ये पैरामीटर है. वैल्यूज जो होती है, वैल्यूज विल ऑलवेज बी, हेलो क्या है, वैल्यू है, राइट. So this is a value that will go to an argument. So that this is actually a argument or a value that goes to a parameter. This is also correct. Okay. Only thing is यहाँ पर space चाहिए, but that's fine. Okay. Monica, again same thing. Correct. ये जो है ना values है. You cannot do it like this. We want, these are, और वो गलती से सेंड हो गया। okay, okay. वो एंटर नीचे कर रही, वो एंटर हो गया, सॉरी सर। तो yes, shift enter करने से you will go to the next line. Or you can type it in a notepad and then यहाँ पर paste कर दो आप, वैसे भी चलेगा. Anyways, so let's move on. We'll have practice to learn Python arguments in more detail, जो मैं आपको इस वीक में सेंड करूंगा ही. If you're not solving daily questions, आप पीछे रह जाओगे. Trust me, daily questions are very important. Okay, those are kind of the USP हमारे प्रोग्राम कोर्स का. Course, obviously you can learn all of this on YouTube, you can learn all of this anywhere else, but प्रैक्टिस जो हम फोर्स करते हैं आपको करने के लिए रोज, दैट कम्स आउट ऑफ डेली प्रैक्टिस ओनली. ठीक है, तो डेली क्वेश्चंस करने हैं. ऑलराइट, ये तो हो गए पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स. यू कैन आल्सो गिव डिफॉल्ट वैल्यूज. अगर यूजर वैल्यू देना भूल जाता है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रीट, यूजर हैज नॉट गिवन एनी, तो कुछ तो डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी आपको. ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए यू हैव टू यूज दिस, you have to give the value in the same place. तो यहाँ पर पैरामीटर जो दिया है मैंने, पैरामीटर नेम इज इक्वल टू गेस्ट, एक वैल्यू असाइन कर दी है मैंने पहले ही. अगर यूजर ने वैल्यू नहीं भेजी तो ये वैल्यू यूज की जाएगी. अगर यूजर ने भेजी वैल्यू, तो यूजर ने जो वैल्यू भेजी है वो यूज की जाएगी. ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर. ठीक है, ये जो नेम है, दिस इज अ डिफॉल्ट पैरामीटर. इसको एक वैल्यू दी गई है पहले से, डिफॉल्ट वैल्यू. तो इमेजिन करो कि अगर आप यूजर नेम नहीं डालते हो व्हेन यू एंटर द वेबसाइट, so you are a guest for the website because website does not know your name. So that's what this is doing here, just greeting, hello guest. But if you tell that your name is Alice, then it will say hello Alice, hello Shiv, hello Monica, and so on. Okay, so this is again an example of function. This is an example of default parameter. That's how we give default parameters. Okay, all right. रिटर्न वैल्यू के बारे में हमने देखा था थोड़ी देर पहले, फिर से रिविजिट कर लेते हैं. फंक्शन जब आप लिखते हो तब वैल्यू रिटर्न करना ऑप्शनल होता है. अगर आप चाहो तो वैल्यू रिटर्न कर सकते हो. अगर आपको सिर्फ कुछ तो प्रोसेसिंग करना है या फिर कुछ प्रिंट करना है, या फिर आपको जो पैरामीटर अंदर सेंड किया आपको उसको एडिट करना है, तो आप रिटर्न में भी नहीं करोगे. ठीक है, समटाइम्स देयर आर मेनी फंक्शंस व्हिच विल नॉट हैव एनी रिटर्न वैल्यू इन देम, बट इफ यू हैव अ रिटर्न वैल्यू and you want to return a value, then you'll say return space whatever value that you want to return. ठीक है, ये वैल्यू, तो जहाँ पे वैल्यू क्या रिटर्न हो रही है, नंबर का स्क्वायर करके रिटर्न किया जा रहा है. ठीक है, तो सो दिस इज द होल थिंग दैट इज गेटिंग रिटर्न, नंबर स्क्वायर. तो नंबर स्क्वायर की जो भी वैल्यू रहेगी वो रिटर्न हो जाएगी. स्क्वायर नाम का फंक्शन है, 4 सेंड किया गया, नंबर की वैल्यू 4 हो जाएगी.
4 का स्क्वायर करके रिटर्न कर दिया जाएगा. Okay, that is what this function is doing. So that is how you do a return value. Alright, जो भी वैल्यू रिटर्न होती है वो डायरेक्टली वेरिएबल को असाइन हो जाती है. सो दिस इज द वेरिएबल स्क्वेयर्ड वैल्यू. इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन की जा रही है डायरेक्टली, जो भी इससे रिटर्न की जा रही है. ओके, Yes, sir. ऑलराइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड एज स्कोप. ठीक है, तो जब हम फंक्शंस डिफाइन करते हैं तो फंक्शंस के अंदर जब वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो वो वेरिएबल्स बाहर एक्सेसिबल नहीं होते हैं. जैसे कि ये x जो यहाँ पर डिफाइन किया गया है, x इज इक्वल टू एनक्लोजिंग स्कोप, या फिर नॉट दिस, ये वेरिएबल जो है a और b, ठीक है, a और b की वैल्यू इस फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल नहीं है. a और b का मतलब इस फंक्शन के बाहर कुछ भी नहीं है. ओके, अगर a और b और कोई कहीं पे डिक्लेयर किए गए हैं तो वो उनका मतलब होगा, बट इस फंक्शन के स्कोप में जो a और b की वैल्यूज है वो सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के ही लिए लिमिटेड है, वो बाहर नहीं दिखेंगे किसी को. ठीक है, तो दैट इज द स्कोप ऑफ द फंक्शन. ये फंक्शन के स्कोप के अंदर की ही वैल्यूज है. रिजल्ट जो है, रिजल्ट बाहर नहीं पता कुछ भी. रिजल्ट का मतलब क्या है इस फंक्शन के बाहर नहीं पता. अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट रिजल्ट बोल दिया, सम रिजल्ट के नीचे अगर मैंने प्रिंट रिजल्ट बोल दिया, तो आई विल गेट एन एरर विच इज रिजल्ट इज अननोन. अननोन वेरिएबल, रिजल्ट नाम का वेरिएबल है ही नहीं, तो आप उसको प्रिंट कैसे करोगे. लेकिन रिजल्ट नाम का वेरिएबल तो प्रेजेंट है यहाँ पे इस फंक्शन में. ये इस फंक्शन में प्रेजेंट है, मतलब इस फंक्शन के स्कोप के अंदर प्रेजेंट है. ओके, यू कैनॉट यूज द सेम, यू कैनॉट access the variables inside the function outside the scope of it. Okay, तो यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम है. ये x की वैल्यू जो है वो इस फंक्शन के अंदर है. ठीक है, आउटर फंक्शन नाम का फंक्शन है. फंक्शन के अंदर फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हो बाय द वे. ठीक है, यू कैन डिफाइन अ फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन टू, दैट इज कंप्लीटली फाइन. ओके, तो ये अंदर वाला जो x है और ये बाहर वाला जो x है, ये दोनों की वैल्यूज अलग अलग है. जब मैं प्रिंट करूंगा तो ये अंदर वैल्यू, ये वाली वैल्यू प्रिंट करेगा. जब मैं इनर फंक्शन कॉल करूंगा तब ये वाली वैल्यू प्रिंट करेगा. बाहर वाली वैल्यू नहीं प्रिंट करेगा, क्योंकि बाहर वाली, सॉरी, बाहर वाली वैल्यू इसको अंदर एक्सेसिबल होती है, लेकिन अंदर वाली वैल्यू बाहर एक्सेसिबल नहीं होती. ओके, लुक्स लाइक अ लिटिल कंफ्यूजिंग एग्जांपल राइट नाउ, बट इट्स ओके. यहाँ पर डायग्राम दिया है. ठीक है, अगर ये फंक्शन लिखा हुआ है मैंने, इस फंक्शन के अंदर एक लोकल स्कोप में वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल बाहर एक्सेसिबल नहीं होता. ठीक है, लेकिन बाहर के वेरिएबल्स अंदर एक्सेसिबल होते हैं. आपने बिल्ट इन फंक्शंस यूज किए सब जगह पे, राइट. अभी ये बिल्ट इन फंक्शन क्योंकि सबके बाहर है, इसलिए वो एक्सेसिबल है आपको. यहाँ तक अंदर तक एक्सेसिबल है. प्रिंट हो गया, लेंथ हो गया, रेंज हो गया, दो आर ऑल बिल्ट इन फंक्शंस, राइट. वो फंक्शंस आपको अंदर तक एक्सेसिबल है. कहीं भी आप लिखोगे तो वो फंक्शंस एक्सेसिबल है आपको, क्योंकि वो बिल्ट इन में यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए गए हैं. ठीक है, यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए गए बिल्ट इन स्कोप में, तो वो एक्सेसिबल है आपको अंदर भी. ओके, लेकिन अगर मैंने कोई कोड यहाँ पर लिख दिया ग्लोबल स्कोप में, या फिर कोई इसको कोड मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक्स इज इक्वल टू ग्लोबल स्कोप है, और यहाँ पर कोई कोड लिख दिया जिससे जहाँ पे मैं बोलूंगा प्रिंट इनर फंक्शन. ठीक है, आई जैसे प्रिंट इनर फंक्शन, या फिर आई कॉल इनर फंक्शन यहाँ. ओके, अगर मैंने इनर फंक्शन यहाँ कॉल कर दिया, इनर फंक्शन is unknown in this scope. Inner function is present only in this particular scope. इस फंक्शन के अंदर ही प्रेजेंट है वो. ठीक है, तो स्कोपिंग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे you'll get used to scoping. ओके, तो आई विल बी सेंडिंग मोर क्वेश्चंस ऑन योर वे इन दिस वीक. तो आपको स्कोपिंग जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे जल्दी समझ में आएगा. बट जस्ट टू रिमेम्बर, जो चीजें अंदर डिक्लेयर की जाती है या फिर अंदर असाइन की जाती है वैल्यूज, वो बाहर एक्सेसिबल नहीं होती. ठीक है, स्पेशली फंक्शंस में.
अब ये अंदर वाली वैल्यू है x, ये बाहर एक्सेसिबल नहीं होगी, बाहर मुझे दूसरा x क्रिएट करना पड़ेगा अगर मुझे x नाम का वेरिएबल चाहिए होगा तो। ओके, so the variables which are defined outside of any function are global and can be accessed by any part of the code. Variable defined in a function are local and cannot be accessed outside the function unless returned. अगर आप रिटर्न करते हो तो ही एक्सेस होगा, नहीं तो एक्सेसिबल नहीं रहेगा वो वेरिएबल। ओके, so that is about the scope, and scope is very important. It is often confusing. uh, I, even after explaining many times, I've seen students from the previous batches making same scoping mistakes. Okay, they'll call some variable somewhere and then they'll say this variable is not accessible, क्योंकि वो variable accessible होगा ही नहीं क्योंकि scope में नहीं है वो। Okay, so that is called as scope. कहीं कहीं जगहों पे आपको नेम स्पेस भी दिखेगा, नेम स्पेस स्कोप interchangeably यूज होता है कई बार, it has its own meaning, but you can assume that scope and namespace are same for now. अगर एग्जांपल देखना चाहते हो तो पाइथन है, ठीक है, आई जस्ट से ऐड, फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ मैं, ऐड ए कॉमा बी, ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी लिख दिया मैंने, यहाँ पे मैंने रिटर्न किया रिजल्ट को, ठीक है, दिस इज अ सिंपल फंक्शन। तो ऐड क्या है, फंक्शन है, ठीक है, ऐड क्या है, फंक्शन है, ये उसका एड्रेस है, दिस इज फाइन, फंक्शन है, ऐड नाम का फंक्शन है ये, ठीक है। तो लेट मी जस्ट कॉल दिस ऐड नाउ, ऐड 2,3, तो ये 5 आ गया आंसर, ठीक है। अभी मैं क्या बोलता हूँ, प्रिंट ए, क्या बोल रहा है ये, ए इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ए जो है वो सिर्फ इस फंक्शन के लिए है, इस फंक्शन को पता है ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, लेकिन बाहर कुछ नहीं पता, बाहर मुझे फंक्शन के बारे में पता है, लेकिन मुझे बाहर ए के बारे में और बी के बारे में नहीं पता, इसलिए मैं बाहर फंक्शन ही कॉल करूंगा, जस्ट कॉल फंक्शन लाइक दिस 3,4 एंड सो ऑन, बट आई कैनॉट से गिव मी अ वैल्यू ऑफ ए या फिर गिव मी अ वैल्यू ऑफ बी, क्योंकि वो सब फंक्शन के अंदर है। गिव मी अ वैल्यू ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट भी एक्सेसिबल नहीं होगा क्योंकि वो फंक्शन के अंदर है, ठीक है। नाउ लेट्स डू दिस, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर कर सकते हैं क्या, छोटा कर देता हूँ मैं ताकि, मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल निकालता हूँ, लेट्स गिव दिस वेरिएबल ग्लोबल नाम दे देता हूँ, ये नाम देता हूँ, दिस इज हेलो, ओके, और वो फंक्शन फिर से लिखता हूँ, ऐड ए कॉमा बी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट बी, एंड देन ये रिटर्न करेगा लेट्स से ए प्लस बी, ठीक है। तो मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ अभी, टू थ्री, तो ये सबसे पहले इसने क्या किया, प्रिंट किया हेलो को, प्रिंट क्यों किया इसने हेलो को, जैसे ही मैंने ऐड 2 3 बोला तो ये फंक्शन पे जंप किया उसने, उसने बोला ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3, फिर उसने बोला प्रिंट करना है, मुझे क्या प्रिंट करना है, आई वांट टू प्रिंट जी, जी क्या है, ये पहले खुद के स्कोप में सर्च करेगा, इसको जी यहाँ पर दिख रहा है क्या कहीं पे, नहीं, तो ये बाहर जाएगा, फिर बोलेगा बाहर कहीं पे जी है क्या, हाँ, यहाँ पर जी प्रेजेंट है, तो ये जी की वैल्यू वो यहाँ से लेगा और वो प्रिंट कर देगा, दैट इज व्हाट दिस हेलो इज गेटिंग प्रिंटेड फॉर, फिर वो रिटर्न कर रहा है वैल्यू को डायरेक्टली। ओके, दिस इज हाउ द स्कोपिंग वर्क्स, राइट, आई होप दिस क्लियर्स द confusion if there's any, if not let me know।
ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। कई बार क्या होता है, फंक्शंस लिखना तो होता है हमें, बट बहुत छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं। दोज आर लाइक, सिर्फ स्क्वायर करना है, राइट? तो वो पूरा डेफ लिखो, फिर उसके बाद में उसको इंडेंट करो, फिर वेरिएबल्स के नाम दो, फिर रिटर्न करो। ऑल ऑफ दिस इज अ लिटिल वर्डी, राइट? थोड़े से लाइंस ज्यादा है, कोड का लेंथ ज्यादा है। तो if you have some small functions like this, you can use something called as anonymous functions, या lambdas भी बोलते हैं उनको। ठीक है, तो आपको बस स्क्वायर, ये फंक्शन का नाम हो जाएगा आपका, स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स कोलन एक्स का स्क्वायर करके मुझे रिटर्न करना है। दैट इज व्हाट दिस anonymous function is doing. So just have to do square is equal to lambda x, x is my parameter to the function, let's say the square. Okay, so this is my anonymous function that I created. Instead of doing this whole thing, add वगैरह सब कुछ इतना बड़ा लिखने से अच्छा है एक छोटा सा lambda function, anonymous function create करो, or I'll just call it the way I would call any other function, right? Square. That's how anonymous functions are called. You may not see this as commonly used, but it's part of functions. So you should know how to, what is an anonymous function, what is a lambda function. This is the lambda function. Okay, आपको lambda function डेटा साइंस में जब आप numpy pandas सीखोगे तब आपको दिखेगा lambda functions वगैरह यूज किए हुए हैं। ठीक है, तो those are nothing but anonymous functions, और छोटे छोटे एक्सप्रेशंस देने होते हैं। छोटे छोटे एक्सप्रेशंस के लिए आपको पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए लैम्बडा फंक्शंस का प्रोविजन दिया हुआ है पाइथन में। एंड मोस्ट ऑफ द मॉडर्न लैंग्वेजेस हैज दिस। आई थिंक ओल्डर लैंग्वेजेस में नहीं है लैम्बडा फंक्शंस का प्रोविजन, एनोनिमस फंक्शंस का प्रोविजन। तो एक ही लिमिटेशन है, सिर्फ एक एक्सप्रेशन रह सकता है इसमें, पैरामीटर्स कितने भी रह सकती हैं एनोनिमस में। ठीक है, so anonymous functions can have any number of parameters or arguments, but can only have one expression. एक ही expression करना है आपको यहाँ से। ठीक है, again you may not see this in many places, but some companies and some programmers use this. All right, तो पाइथन में जो functions हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट है। ठीक है, और उनका इम्पोर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, इसलिए उनको फर्स्ट क्लास सिटीजन्स बोलते हैं। आप फंक्शन को एज अ वैल्यू असाइन कर सकते हो, आप फंक्शन को एज अ पैरामीटर भी सेंड कर सकते हो, आप फंक्शन को रिटर्न भी कर सकते हो किसी भी तरह कहीं से। जैसे कि यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले एक स्क्वायर नाम का फंक्शन लिखा गया है जो स्क्वायर करेगा एक्स जो भी वैल्यू आएगी उसका। फिर लिखा गया है क्यूब नाम का फंक्शन जो क्यूब करेगा। मैंने एक लिस्ट बना दी यहाँ पे फंक्शन की लिस्ट, सो दिस इज अ फंक्शन लिस्ट, जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट ऐसे क्रिएट करते हैं, राइट? तो ये दिस इज अ लिस्ट, एक लिस्ट क्रिएट की मैंने। लिस्ट में मैंने पहला वैल्यू दे दिया स्क्वायर, दूसरा वैल्यू दे दिया क्यूब। सो दिस इज माय फंक्शंस का लिस्ट। नाउ आई कैन लूप ओवर दिस लिस्ट, इस लिस्ट के ऊपर मैं लूप करता हूँ और ये फंक्शंस को कॉल करता हूँ इस तरह से डायरेक्टली। करेक्ट, तो दिस इज completely लीगल, and that's why we are saying that functions are first class citizens. They are important, they are pretty uh, flexible in python। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिस्ट ही बना दी फंक्शंस की, ऐसे बहुत सारी लिस्ट हो सकती है फंक्शंस की लिस्ट पूरी, राइट? फंक्शन के अंदर फंक्शन इससे कॉल कर सकते हैं। प्रिंट, यहाँ पे फंक्शन को पैरा एज अ आर्ग्यूमेंट सेंड कर दिया मैंने, जो भी फंक्शन टू रहेगा दैट इज एन आर्ग्यूमेंट नाउ, राइट? अब ये फंक्शन जो रहेगा स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर होगा, उसके बाद में रिटर्न होगा, फिर वो प्रिंट होगा, उसके बाद में क्यूब का आएगा ऑन द सेकंड आइटम इन द लिस्ट, इट विल गेट रन। ओके, वी कैन टेक दिस एग्जांपल इन फैक्ट।
Just copy this code. You can try this code in your Kaggle or in your Python installation if you have one. Just define the function. Just we'll create lambda functions. Okay. Cube. I'll just call this function list. Okay. Function list is equal to दो चीजें दे दी मैंने. Where square cube mm, function list. ये होगी मेरी फंक्शन की लिस्ट. अब मैं क्या करता हूँ फॉर लूप फॉर एफ इन फंक्शन लिस्ट. लिस्ट में जो भी है आई वांट टू प्रिंट समथिंग. ये प्रिंट क्या करना है मुझे एफ को कॉल करना है और एफ की वैल्यू देनी है मुझे 4. तो पहले जो भी आएगा फंक्शन तो इस केस में स्क्वायर आएगा राइट. तो पहले स्क्वायर प्रिंट होगा फिर उसके बाद में क्यूब प्रिंट होगा. होना चाहिए. पहले स्क्वायर प्रिंट हुआ फिर उसके बाद में क्यूब प्रिंट हुआ. ये फंक्शन एज अ पैरामीटर सेंड किया गया. सॉरी एज एन आर्ग्यूमेंट सेंड किया गया राइट. सो दिस इज एन आर्ग्यूमेंट राइट. प्रिंट नाम का फंक्शन है. प्रिंट नाम के फंक्शन को ये मेरा हो गया आर्ग्यूमेंट. ओके. एफ नाम का फंक्शन है उसको हो गया 4 मेरा आर्ग्यूमेंट. ओके. और एफ क्या है इट इज one of the items in this particular list. All right. So functions are very flexible. You can pass them around. You can use them in parameters, variables. Correct. So that's why they are called as first class citizens in Python. Okay. Any questions in this? I'll just pause here for a couple of seconds. Any questions? नो सर. सर कोडिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, मतलब कैसे इसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं और भी ज्यादा, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा कोडिंग के अंदर कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ से खत्म करें, कौन से मार्क्स कब लगने हैं कब नहीं लगने, क्योंकि मेरा आईटी बैकग्राउंड नहीं है. आपने कितने डेली क्वेश्चन सॉल्व किया अश्मिता अभी तक? मैं डेली क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पा रही हूँ. छोटा सा क्वेश्चन होता है, प्लस कर दो माइनस कर दो हो जाता है. लेकिन जैसे आपने वो रिजल्ट वाला असाइनमेंट के अंदर दिया हुआ है, असाइनमेंट 5th के अंदर दिया हुआ है, 2nd के अंदर भी जो कोड दिया हुआ है, वो समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे अब यहाँ पे क्या फिल करना है. Okay. Anyone else from the non-IT background having the same difficulties? I just want to understand um, how to solve that problem. So maybe anyone else who is from non-IT background is facing the same difficulties. If not, how did you overcome? सर सेम प्रॉब्लम. Aditya, you also having the same problem. लूप्स में प्रॉब्लम है, बाकी कोडिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है. कब कौन सा Mhm. लूप कहाँ यूज करना है वो कंडीशंस. Okay, conditions में problem है. Okay. हाँ सर, मुझे भी आई थी प्रॉब्लम Mhm. लूप्स में, पर Mhm. वही फिर ट्रायल एंड एरर, 2-3 Correct. कोड गलत हुए, फिर उसके बाद में फिर रिजल्ट आ गया तो फिर ठीक है. Okay. 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 वही कब रेंज कब यूज करना है, वो कब यूज करना है.
प्रोसेस में, बस उतना ही कंफ्यूजन। Correct. Okay. Okay. What about others who are from non-IT background? यस सर, Yes, Pawan. यही दिक्कत आ रही है सर, कहाँ कब का यूज करना समझ नहीं आता। थोड़ा कहीं देखना पड़ता है, उसके बाद थोड़ा हाँ आ जाता है, कोड देख के आ जाता है समझ सर कि हाँ ये हो रहा है, लेकिन क्या लिखना है वो नहीं आता। Okay. Okay. सर श्वेता का क्वेश्चन क्या था, मतलब समझ में नहीं आया। हम्म। ओके, ठीक है। तो फर्स्टली इट इज नॉर्मल कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है कि हो कोड कैसे रन हो रहा है या फिर कौन सी चीज कहाँ यूज करनी है, वो कंप्लीटली नॉर्मल है। ठीक है। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सजेस्ट अ फ्यू मोर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ट्यूटोरियल्स फॉर यू ऑल। ठीक है, जिनको दिक्कत अभी भी हो रही है, स्पेशली नॉन आईटी बैकग्राउंड वालों के लिए। ठीक है, आई कैन गिव यू फ्यू मोर ट्यूटोरियल्स। लेकिन अगर आपने फर्स्ट डे से प्रैक्टिस की है एंड इफ यू स्टिल फेसिंग डिफिकल्टीज, दैट मीन्स आई नीड टू चेंज समथिंग ऑन माई साइड। ठीक है। सो इफ देर इज समवन हु इज ऑफ नॉन आईटी बैकग्राउंड एंड हैज ऑनेस्टली डन एवरीथिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे, सारे डेली असाइनमेंट्स, राइट, सारे सेशंस अटेंड किए हैं, and if you're still facing difficulty, that means there needs to change something from my end. So I want to know from that particular person some feedback. Okay. Okay, I honestly want to help you all here. Okay, so if you are still thinking that there needs to be something changed and you have followed it from the very first day without fail, I want to get the feedback. Okay, if you have followed it 80% from the first day, if not 100%, even that's okay. यही सर, इसी की वजह से सबमिशन भी नहीं हो पा रहा असाइनमेंट का। सारे पूरा कोड आपने जैसे ये लिख के दिया था, हम्म। सॉरी स्क्रीनशॉट में दिया था कि आप खुद अपने हाथ से टाइप करें। अब अपने हाथ से टाइप तो कर दिया, बट तो समझ में भी आना चाहिए ना कि यहाँ पे क्या करे करके। मैं असाइनमेंट 2 देख रही थी, 3 देख रही थी, 4 देख रही थी, क्योंकि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो सुबह 8 से लेकर शाम को 9 बजे तक मेरी वो होती है। कंप्लीट करने के बाद जैसे ही कोड करने के लिए बैठते हैं, तो ऐसा होता है कि अब ये क्या नया है करके पूरा कोड टाइप कर दिया, फिर भी एरर 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 ही आए जा रही है। इसकी Okay. वजह से मेरे असाइनमेंट भी सबमिट नहीं हो पा रहे। अब मैं अपनी मतलब जॉब जो है वो क्विट करना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं क्विट कर भी देती हूँ जॉब वगैरह, मेरे पास पूरा टाइम बचा हुआ है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो फिर मेरा असाइनमेंट भी बाकी रह रहा है, प्रैक्टिस भी नहीं हो पा रही है। तो कोडिंग के अंदर ऐसा होता है कि जब मैं उस कोड को देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये नोटबुक के अंदर है, अगर कोई अपने को बोले कि ऐसे ऐसे रिजल्ट लाना है, तो हम लोग ला सकते हैं मैथमेटिक्स के थ्रू एंड ऑल। लेकिन जब कोडिंग में ऐसा होता है कि हम लोग को सब कुछ पाइथन के ऊपर छोड़ना होता है कि वो आंसर दे दे। जैसे असाइनमेंट 2 के अंदर वो रिजल्ट का दिया हुआ था करके, तो उसके अंदर से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे, क्योंकि हर एक चीज को वैल्यू असाइन करनी पड़ रही है। Correct. इसीलिए बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है कोडिंग के अंदर। मतलब अगर ऐसा कुछ सजेशन है कि कोडिंग छोटे छोटे कोड होते हैं, कोई भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे कॉम्प्लेक्सिटी आती है तो उसको थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो जाता है। और जैसे कॉम्प्लेक्सिटी आती है, अंदर और बहुत सारी चीजें ऐड करनी पड़ती है, जैसे कि आप एफ ऐड करवाते हो और उसके बाद बैक स्लैश के अंदर एन होता है, तो अब समझ में नहीं आती कि ये किस वजह से यूज किया हुआ है, इसका यूज क्या है कोड के अंदर। Okay. हम्म। तो और so कॉम्प्लेक्सिटीज तो बढ़ने वाली है, so that's for sure. But I am getting your point. So you're saying that you're still facing difficulties in Python and
आप कोड जब टाइप करते हो तभी भी आपको एरर्स आते हैं, करेक्ट? तो व्हाट आई कैन से इज, जो हमारे पहले पाइथन के कुछ सेशंस हुए हैं उसके रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है, और जो हमारे आस्क और आंसर के हैं शुरुआत से, जस्ट गो बैक ऑल द वे टू द स्टार्ट, वहां से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, स्टिल फेसिंग डिफिकल्टीज, दैट मींस आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ डू आई ओवरकम दैट। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि वो नॉर्मल है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे प्रमोद ने बोला कि इनको एरर आ रहा था, right? So a couple of other students were also having this error. I think Akshay is also from a non-IT background. I'm not sure about that. Uh, After that, we have some students who are from non-IT background. Uh, and then we have some students who have never done any coding. जो अभी भी कॉलेज में अभी शुरुआत किया है उन्होंने कॉलेज में जाना, ठीक है? तो दे हैव नेवर डन कोडिंग बिफोर दिस, तो वो लोग भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यही वाले। बट इसके ऊपर सॉल्यूशन यही है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपका जॉब फुल टाइम है तो आपको वीकेंड पे टाइम निकालना पड़ेगा, या वीकेंड पे भी यू आर नॉट एबल टू टेक आउट टाइम। नहीं, आई अश्मिता, एम जस्ट अबाउट टू लीव माय जॉब, सो नो वरीज अबाउट दैट, अभी टाइम तो होगा। सिर्फ इसी ओके क्लासेस के लिए मैं अपनी जॉब छोड़ रही हूँ। ओके, so I mean, I cannot tell you that you should be leaving the job for the classes or not, because that obviously is a personal decision and you will have other commitments too. So ओनली थिंग आई वुड सजेस्ट कि आप डेली 1-1.5 घंटा भी स्पेंड करते हो और वीकेंड पे 3-4 घंटा स्पेंड करते हो तो भी आपका कोर्स अच्छे से होगा, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है? आई कैन गारंटी यू दैट, बिकॉज व्हाट वी लर्न हियर, दिस इज ऑल बेसिक स्टफ। इसमें कुछ भी हमने बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स या फिर बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाला कुछ भी, ऐसे आप समझ के ही चलो। सबसे पहले तो आप दिमाग, जब आप शुरू करते हो कोडिंग, तब अपने दिमाग में ये फिट कर दो कि ये बहुत इजी चीज हम लोग कर रहे हैं अभी, ठीक है? इफ यू थिंक दैट इट इज समथिंग न्यू, समथिंग डिफिकल्ट, समथिंग दैट यू विल नॉट बी एबल टू अचीव, तो शायद वो और ज्यादा मुश्किल लगता है, ठीक है? और जब आपको एरर आता है, जब आपको प्रॉब्लम आता है, तब सबसे पहले आप उसको सॉल्व कैसे करते हो? अगर आप उसको सॉल्व करने की बजाय जब गिव अप करके बंद कर देते हो, तो वो प्रॉब्लम चला नहीं जाता, प्रॉब्लम वहीं रहता है, बस आपके सामने से चला गया वो प्रॉब्लम। ओके, तो व्हाट आई एम सेइंग इज, obviously जॉब छोड़ना नहीं छोड़ना, दैट इज योर पर्सनल डिसीजन, आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस दैट पार्ट। बट Okay. व्हाट आई वांट टू से इज कि डेली 1.5 घंटा 1 घंटा कोड जैसे दिखता है उसको टाइप करके रन करो, ठीक है? एरर आता है सेंड करो ग्रुप पे, ठीक है? आस्क और आंसर नाम का चैनल है हमारा, यहाँ पर दिस चैनल इज क्रिएटेड फॉर स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस, कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, यू आर फ्री टू आंसर, आस्क हियर। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आईटी बैकग्राउंड से, वो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? एंड if there's any volunteer who wants to help Ashmita, uh, obviously I'm here to help. But if there's someone who is from IT background and wants to uh, maybe sit one on one and help Ashmita, you're more than welcome to send her a message here. Okay, so I think some people are will be able to help there. But Ashmita, even if you're facing difficulties, you can ask the questions here or you can send the questions directly to me. Okay, but don't wait for so long, right? हमारा कोर्स शुरू होके अभी ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए, 2 मंथ Yes. हो जाएंगे, राइट? तो हम्म। तो ऑल ऑफ दिस शुड बी इन द फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ में आपको एरर आने चाहिए सारे, वी शुड ट्राई टू हैंडल दोज एंड वी शुड ट्राई टू सॉल्व देम एट दैट टाइम। आई एम नॉट सेइंग नाउ इट इज लेट, वी स्टिल गॉट टाइम, अभी भी 4 महीना है हमारे कोर्स में, राइट? 3.5-4 महीना है कोर्स का, बट इट्स लाइक 30% कोर्स हो रहा है हमारा खत्म, करेक्ट? Yes. तो नाउ यू शुड गेट डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स। आपको सिंटैक्स एरर्स नहीं आने चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपको अभी भी सिंटैक्स एरर आ रहे हैं तो आपका प्रैक्टिस में थोड़ी सी कमी है, ठीक है? जी। प्रैक्टिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, सो दिस इज जस्ट लाइक लर्निंग टू राइड अ बाइसाइकिल, ठीक है? और कोड जो होता है, बस एक ही चीज डिफरेंट है आपके स्पीकिंग लैंग्वेज से और कोड के लैंग्वेज में, विच इज कोड में जो सिंटैक्स होता है वो स्ट्रिक्ट होता है,
ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से वेरिएबल असाइन करना है तो इसी तरह से वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा, अगर आपको इस तरह से लिस्ट क्रिएट करना है तो इसी तरह से लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा आपको। ओके, सो दिस इज व्हाट इज देयर। बट जब आप कोड लिखते हो, कोड लिखने के पहले आप दिमाग में ऐसे सोचो कि आपको करना क्या क्या है। सो ये तीन चार चीजें करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब रेसिपी भी बनाते हो कुछ, यू ऑलरेडी नो कि आपको तीन चार चीजें करनी है। वो तीन चार चीजें क्या है, वो आप पेन से पेपर पे लिख लो और फिर इसको कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। मे बी दैट विल हेल्प यू सॉल्व सम। या फिर जब आप टाइप करते हो, टाइप करते वक्त गलतियां क्या होती है, या तो आप टैप कर भूल जाते हो, या फिर डबल टैप भूल जाते हो, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं आपके वेरिएबल नेम्स में। करेक्ट। सो दीज आर सम कॉमन मिस्टेक्स दैट आर डन। तो वो चेक किया करो आपको वहीं पे एरर आ रहा है क्या, एंड दैट इज कॉमन। ओके, वो एरर्स आएंगे आपको। एंड इसीलिए मैं जानबूझ के कैगल से ही शुरू कर रहा हूँ। आई डिड नॉट गिव यू चांस टू गो थ्रू द आईडीई येट। ठीक है, आईडीई में ये सारे चीजें थोड़े से इजी हो जाते हैं, बट कैगल इज स्टिल गुड। ओके, ठीक है। ओके। आई होप दैट हेल्प्स कि अब थोड़ा सा टाइम ज्यादा स्पेंड करो पाइथन पे। एंड सी, जेन्यूनली 1 घंटा 1.5 घंटा और वीकेंड्स पे 3-4 घंटा अगर आप बैठते हो तो हो जाएगा ये। ऑलराइट, अगर आप थोड़ा थोड़ा डिले, थोड़ा थोड़ा वो ऐड होते जाता है। ठीक है, सो द गोल इज टू हैव कंपाउंडेड लर्निंग। द गोल इज नॉट टू लर्न एवरीथिंग एट अ बर्स्ट एंड देन फॉरगेट अबाउट इट। वो गोल नहीं है हमारा। वैसे करेंगे तो फिर लर्निंग एक तो पेनफुल लगती है, और ऐसे लगता है कि बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। ठीक है, बट अगर आपको लर्निंग एंजॉयबल करना है और सस्टेन करना है पूरे कोर्स में, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप थोड़ा टाइम रोज डेली निकाल रहे हो। थिंक ऑफ इट लाइक वर्कआउट और योर डेली चोर्स दैट यू डू। ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकालो, 1-1.5 घंटा, वीकेंड पे थोड़ा ज्यादा टाइम। अभी जब आप प्रोजेक्ट्स करोगे तब आपको और भी थोड़ा ज्यादा टाइम निकालना पड़ेगा, बट शुरुआत के लिए इंटरेस्ट गेन करने के लिए इतना टाइम काफी है आपका। ठीक है, अगर आपने बुक, आपको डिजिटल कॉपी का पढ़ने में डिस्ट्रैक्ट होते हो, यू गो ऑन द डिफरेंट टैब्स एंड डिफरेंट स्लाइड्स एंड सो ऑन, तो आप मे बी प्रिंट कर लो उस किताब को, जो हमारी टेक्स्ट बुक है, वहां से प्रिंट करके पढ़ लो। राइट, यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब पढ़ रहे हो, जब आप सीख रहे हो, तब आप डिस्ट्रैक्शन फ्री हो सबसे पहले तो दिमाग में। ओके, इट कुड बी राइट नाउ इन द कोर्स, इट कुड बी आफ्टर ऑफलाइन, जब आप ऑफलाइन चले जाते हो तब। ठीक है, हमारी आदत सबकी छूट गई है नोट्स। आई एम नॉट श्योर कितने लोग नोट्स निकालते हैं, आई एम नॉट श्योर कितने लोग नोट्स को फिर से रिफर करते हैं, आई एम नॉट श्योर कितने लोग असाइनमेंट्स, जब मैं आंसर शेयर करता हूँ तो कितने लोग पढ़ रहे हैं वो आंसर्स को। ठीक है, सो दीज आर सम क्वेश्चंस दैट आई एम ट्राइंग टू गेट फीडबैक फ्रॉम यू ऑल। ओके, बट इट्स गुड दैट you're raising the voice and saying that नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। तो the only advice I'll have is practice more. And obviously when I say more, that's a subjective thing कि depending on कितना टाइम आपको मिल रहा है, मिनिमम 1 से 1.5 घंटा आपको निकालना है। ठीक है, हो सकता है आप 7 दिन में से 6 दिन भी अगर कर पाते हो, तो 3 दिन पाइथन, 2 दिन डेटा साइंस, और फिर 1 दिन जो भी आपको पीछे लग रहा है रह गया वो पढ़ने में लगा दो। ठीक है, बट रेगुलरली करना है। ठीक है, एक ही टेक्स्ट बुक है हमारे पास, हम लोग कोई और बुक्स भी नहीं रेफर कर रहे हैं, हम लोग इंटरनेट पे भी नहीं जा रहे हैं, सिर्फ एक ही टेक्स्ट बुक है ये हमारी। कभी कभी मैं ये वाली टेक्स्ट बुक बोल देता हूँ पढ़ने के लिए, अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है और डिटेल में पढ़ना है तो, नहीं तो देयर इज ओनली वन टेक्स्ट बुक दैट वी आर गोइंग टू रेफर। ओके, ओके सर। या हेलो। यस। हाँ, एक्चुअली सर मैंने अश्मिता का कोड देखा था, तो हम्म मतलब इनिशियली लूप्स में तो कंफ्यूजन होगा ही ऑब्वियसली, बट बाकी के जो एरर्स थे वो मतलब बहुत बेसिक थे, मतलब जैसे कि इंडेंटेशन हो गया या फिर सेमी हम्म कोलन की जगह कोलन हो गया, तो वो ऐसे बहुत बेसिक थे। तो ऐसे बहुत पीछे वगैरह ऐसा भी नहीं है, हम्म। जस्ट मतलब फ्यू डेज लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। Okay, okay, so, okay, sounds good. So Shiv, if you can connect with Ashmita once, Ashmita, connect with Shiv. I think
he should be able to help you, Shiv, based on how much time you have. Maybe just take out some time, try to sit with her, and if you can help her, it will be great. If not, I'm also available, Ashmita. Okay. यस Yes, सर, sure, I can. उन्होंने ऑलरेडी एक बार हेल्प करी थी मुझे, मेरा कोड करेक्ट करके दिया था. Okay. Okay. ऑलरेडी आई रीच आउट टू हिम. All right, Ashmita. ठीक है. तो ask for help, get help as much as possible, because once you're out of the course, there'll be no one else to help you, right? Maybe you'll have some friends and family to help you, but context के बारे में नहीं पता. They don't know what we are learning. So that's why, क्योंकि हम कोर्स में हैं, we have students available, we have people who are experienced. So try to get as much as help possible from the course. Okay. All right. So let's see how you do in next couple of weeks. And if you're still facing difficulties, that goes to everyone who was saying that they are from non-IT background and still facing difficulties. Okay, I understand. And if I was to go and learn something new out of my domain, मुझे भी problems होंगे. ठीक है. And I don't deny that. हो आपको problems हो रहा है, and the only solution for that is uh, just keep practicing. I can send you some more tutorials, maybe in Hindi, on YouTube, if that is preferred. But उसमें भी again same ही चीजें बोली रहेगी, what we teach in the class. But if that helps, I'll see something which maybe is more beginner friendly at this point of time. Maybe. Okay, but you all are not beginners anymore, right, Ashmita? You already know what a syntax error is. You already know what's a variable and all that. So it would be waste of time कि अगर मैं आपको कोई बहुत ज़्यादा basics tutorials भी भेज दूँ तो. Okay. So let's see what okay. I'll see what I can do. But make sure you are attempting. रोज 1.5 घंटा and weekends पे 3-4 घंटे. Okay. ओके. Yeah. All right. तो ये तो हो गए यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो मैंने एज ए यूजर डिफाइन किया. पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस जो हमने अभी तक यूज किए उनके बारे में एक बार देख लेते हैं. जैसे कि एल ई एन से क्या पता चलता है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लिस्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ डिक्शनरी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ सेट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ I think that's it, right? So that is what this length function will tell you. len नाम का function है. len round bracket, this is how we call the function. You get the length. मैक्स नाम का भी एक फंक्शन होता है. सो ये नंबर्स की लिस्ट है, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है. अगर मैंने मैक्स बोल दिया तो वो सबसे मैक्स वाली वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ पर. सेम फॉर द मिन नाम का एक फंक्शन. सो दीज आर ऑल बिल्ट इन फंक्शंस. ये कहीं पे डिफाइन नहीं किए मैंने ऊपर. जैसे मैंने ये फंक्शंस डिफाइन किए स्क्वायर क्यूब, वैसे मैंने ये फंक्शंस डिफाइन नहीं किए यहाँ पे. ये फंक्शन डिफाइन करके है पहले से ग्लोबल स्कोप के बाहर, पाइथन ने डिफाइन करके रखे हैं मेरे लिए. ओके. तो पाइथन के खुद के बिल्ट इन फंक्शन है, वो यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. लेंथ हो गया, मैक्स हो गया, मिन हो गया, फिर प्रिंट हो गया. सो ऑल ऑफ दिस इज पाइथन के इनबिल्ट फंक्शंस, और उनको बस कॉल किया जा रहा है. मैं कॉल कर रहा हूँ सिर्फ उनको. ये मेरा आर्गुमेंट है नंबर्स. ये मेरा आर्गुमेंट है. प्रिंट के लिए जो आप राउंड ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में डालते हो चीजें, दैट इज नथिंग बट समथिंग दैट इज एन आर्गुमेंट टू दैट फंक्शन. ये प्रिंट नाम का फंक्शन है, उसके लिए आर्गुमेंट है. ओके. ऑलराइट. सो दैट आर द बिल्ट इन फंक्शंस. एक लास्ट देखते हैं हम लोग मॉड्यूल के फंक्शंस के बारे में. आपने जब डेटा साइंस का कोड देखा होगा, वहां पे आपको इंपोर्ट दिखा होगा बहुत जगह पे. इंपोर्ट pandas, इंपोर्ट numpy, इंपोर्ट matplotlib, इंपोर्ट skypy, इंपोर्ट seaborn. Okay. Import math, import os, right? So all of these are modules. ठीक है. तो मॉड्यूल को आप किससे इक्वेट कर सकते हो? मॉड्यूल को आप किसी कबर्ड की तरह सोच सकते हो. ठीक है. नॉट अ कबर्ड, मे बी अ बॉक्स. ठीक है. एक बॉक्स है,
खिलौनों का बॉक्स है मे बी, राइट। उस बॉक्स के अंदर जो भी खिलौने हैं वो एक्सेस करने के लिए मुझे वो बॉक्स ओपन करना पड़ेगा, फिर बॉक्स हाथ में लेना पड़ेगा, तभी मैं ओपन कर पाऊंगा, राइट। दैट एक्शन ऑफ टेकिंग द बॉक्स इन द हैंड और ब्रिंगिंग द बॉक्स इन माई स्कोप इज कॉल्ड एज इम्पोर्टिंग द मॉड्यूल। जो यहाँ पर किया है, इम्पोर्टिंग द मॉड्यूल। ओके, इस मॉड्यूल के अंदर कुछ फंक्शंस डिफाइन किए हैं, इस बॉक्स के अंदर कुछ टॉयज हैं जिनके साथ में मैं खेलना चाहता हूँ। Okay, so that is why that box is. Maybe I have another box which is having only pens, uh, paper, sketch pens, other things in it, right? So I can get that box, keep it in my lap, open the box, and check what is present inside that box. And that box is a module now. Okay, first module was of the toys, जिसमें toys थे सारे. Second module जो था box, that is the box of maybe uh, some stationary stuff. ठीक है, सो मॉड्यूल में रिलेटेड चीजें एक साथ डिफाइन की जाती है और उनको आप इंपोर्ट करते हो ताकि आपको उसके अंदर की चीजों को एक्सेस मिल सके। ओके, मॉड्यूल कैन आल्सो बी thought of as maybe different rooms in your house. Okay, you have a bedroom, right? So in order to sleep you have to open the bedroom and you have to enter the bedroom and sleep on the bed, right? तो बेडरूम के अंदर वाली चीजें will not be accessible in the living room because you have to, वो बेडरूम के अंदर है, right? That's why, so you have to access those things, right? So that's why the modules are, that's what the modules are. Okay, modules के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, but in short modules are just like boxes, something which are present in a separate file। और इस फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फाइल क्रिएट की मैंने, मॉड्यूल डॉट पाई नाम की फाइल क्रिएट की, उस फाइल में मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया। ओके, ये मॉड्यूल डॉट पाई नाम की फाइल है, एक फाइल मैंने क्रिएट की, उस फाइल के अंदर मैंने ये फंक्शन डिफाइन किया। ओके, और फिर उसके बाद में कहीं मेरे मेन प्रोग्राम में मैंने उस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, इस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, तभी ये मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस थे वो एक्सेसिबल हो जाएंगे यहाँ पर। अभी एक्सेसिबल कैसे होंगे? मॉड्यूल का नाम डॉट उस फंक्शन का नाम, राइट। सो मॉड्यूल का नाम, वॉट एवर द नेम ऑफ द मॉड्यूल इज, डॉट ग्रीट। ग्रीट क्या है? ये फंक्शन है, हमारे केस में मॉड्यूल का नाम ही मॉड्यूल है, तो दैट्स ऑल। So this is how you call the function within the module and you have seen this earlier too। अगर आपने कोई भी डेटा साइंस का कोड देखा होगा जो हमने यहाँ पे शेयर किया होगा कहीं पे, चेक किया, where is the data science code somewhere, not this one, it's fine, just go to the Kaggle here। Sign out हो गया, give me a second, let me stop presenting and sign into my Kaggle fonts। ओके, तो ये डेटा साइंस है मेरा, ठीक है। एक डेटा साइंस का कोड ओपन करते हैं, लीनियर रिग्रेशन। तो ये क्या है? ये अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, ये डिफाइन किए गए, ये कहीं तो इंस्टॉल किए मैंने मॉड्यूल्स, ये मॉड्यूल्स को मैंने इंपोर्ट किया। ओके, तो इंपोर्ट numpy एज, ये एज को इग्नोर कर दो, दिस इज जस्ट कॉलिंग एज रीनेमिंग द मॉड्यूल फ्रॉम numpy टू समथिंग एल्स। इसको एलियास बोलते हैं, बट जस्ट focus on this part, import numpy, that is how you import a module, import pandas, that is how you import a module जिसका नाम है pandas। ओके, अभी मैंने क्या किया, numpy डॉट random डॉट seed, तो random नाम का कुछ फंक्शन रहेगा वहां पे, या फिर कोई तो वेरिएबल रहेगा वहां पे, या फिर कोई क्लास रहेगा, ठीक है। उसके अंदर की चीजें एक्सेस करने के लिए दिस इज हाउ यू डू इट। ओके, एक डॉट होता है, उसके बाद में उसका नाम देना है, दैट इज हाउ यू कॉल द फंक्शन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द मॉड्यूल। जैसे कि ये plt डॉट स्कैटर, ओके, तो स्कैटर नाम का फंक्शन है, कहां पर प्रेजेंट है ये फंक्शन प्रेजेंट है plt नाम के मॉड्यूल के अंदर। ओके, तो इस फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स दिए है मैंने, डेटा x
और डेटा y, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज से। ओके, ये एक फंक्शन है plt डॉट शो, plt नाम का मॉड्यूल है, डॉट शो मेरा फंक्शन का नाम है। ओके, plt नाम का मॉड्यूल है, डॉट y लेबल, मतलब जो भी मेरा y एक्सिस है उसका लेबल सेट करना है मुझे। ये मेरा y एक्सिस है ना, इसका लेबल सेट करना है मुझे, y नाम का लेबल देना है उसको। ओके, so that is how you call a mod function which is present in a module, right? तो जब आप कोड पढ़ोगे तब आपको समझना चाहिए कि ये कोड में जो डॉट लिख के फंक्शन का नाम लिखा गया है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर वो फंक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, आपको वो फंक्शन करता क्या है, कैसे करता है, वो सबका कुछ लेना देना ही नहीं है। यू ओनली हैव टू वरी अबाउट द फंक्शंस दैट यू डिफाइन। मे बी व्हेन यू डू एडवांस प्रोग्रामिंग एट दैट टाइम यू मे नीड टू नो कि उसके अंदर काम कैसे हो रहा है, जैसे कि प्रिंट के अंदर क्या हो रहा है एग्जैक्टली अगर आपको पता करना है। तो प्रिंट का कोड एक्सेसिबल नहीं है अभी आपको, क्योंकि इट्स नॉट प्रेजेंट इन द फाइल दैट यू आर क्रिएटिंग, इट इज प्रेजेंट समवेयर एल्स। यू हैव टू गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस टू सी द कोड, ठीक है, एंड इट इज एक्सेसिबल, आपको मिल जाएगा। only thing is you'll have to search for it, you'll have to maybe jump to that code or open that module. Alright, तो जब भी आप कोड पढ़ोगे और आपको डॉट दिखता है तो समझ जाना कि ये मॉड्यूल के अंदर वाला फंक्शन है। ठीक है, और आई वांटेड टू रिविजिट दिस ब्रेक। तो ये लूप है, फॉर लूप और वाइल लूप। फॉर लूप में आप सीक्वेंस के ऊपर लूप करते हो, दिस कुड बी अ लिस्ट, दिस कुड बी अ डिक्शनरी, दिस कुड बी अ सेट, एंड यू लूप फॉर दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस। आप एक कंडीशन चेक करते हो और आप ब्रेक बोलते हो। ठीक है, मे बी वांट टू ब्रेक एट अ सर्टेन कंडीशन। तो यहाँ पर लिखा अगर वैल्यू 3 हो जाती है तो ब्रेक करना है आपको। ठीक है, तो मेरा काम क्या है यहाँ पे, माई गोल इज टू लूप ओवर 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स के ऊपर मुझे लूप करना है, दैट इज माई टास्क। तो मैं फॉर आई इन रेंज 5 बोलता हूँ, तो 5 एलिमेंट्स के ऊपर लूप हो जाएगा 5 टाइम्स। जब आई की वैल्यू 3 होती है तो मुझे ब्रेक करना है। तो ब्रेक जैसे ही करता हूं मैं, मेरा एग्जीक्यूशन जो है वो बाहर निकल के आता है पूरा कोड के, तो इसके नीचे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता। ब्रेक करते ही ये फॉर लूप से बाहर निकल जाता है। ओके, ब्रेक करते ही ये फॉर लूप से बाहर निकल जाता है, नीचे चला जाता है, फॉर लूप के बाहर चला जाता है। सेम थिंग विद द वाइल लूप। अगर कोई कंडीशन ट्रू है तब तक ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होते रहेगा। जब कोई कंडीशन मिलेगा मुझे जहां पे मुझे ब्रेक करना होता है, ब्रेक करते ही ये वाइल लूप के बाहर निकल जाता है। ठीक है, दैट इज द ब्रेक, दैट इज हाउ ब्रेक वर्क्स आपके लूप में। ठीक है, वाइल लूप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ब्रेक, क्योंकि अगर आपने वाइल ट्रू बोल दिया इसको तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, खत्म ही नहीं होगा जब तक आप उसको ब्रेक नहीं, जब तक आप उसको कंडीशन देते नहीं हो ब्रेक का। ठीक है, स्पेशली जब आप डेली क्वेश्चंस देखते हो यहाँ पे, आपको बहुत सारी जगहों पे वाइल वन दिखेगा, वाइल ट्रू दिखेगा, सॉरी, यहाँ पे कहीं तो रहेगा वाइल ट्रू, प्रीटी श्योर। इमेजेस जो मैंने शेयर की है कहीं पे, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, वाइल ट्रू। ओके, ये वाइल लूप तब तक रन करते रहना है जब तक ये ट्रू, जब तक ये कंडीशन ट्रू है। लेकिन ये कंडीशन ही ट्रू है तो वाइल लूप तो हमेशा रन होते रहेगा। ये एग्जिट कहाँ करना है, जब मेरा चॉइस 3 आता है, जब यूजर बोलता है कि इनपुट योर चॉइस और यूजर इनपुट्स 3, एट दैट टाइम आई एग्जिट दिस प्रोग्राम, दैट इज व्हेन आई एग्जिट, दैट इज व्हेन आई ब्रेक। और ब्रेक करते ही ये वाइल लूप के बाहर निकल आता है। ठीक है, दैट इज व्हाट दैट ब्रेक स्टेटमेंट इज। फॉर में और वाइल में दोनों जगह पे ब्रेक स्टेटमेंट लिखा जाता है। ओके, इनके बाहर कहीं भी ब्रेक नहीं दिखेगा आपको। अदर थिंग इज कंटिन्यू। ठीक है, तो कंटिन्यू का काम क्या होता है, अगर कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग, ओनली थिंग is you will not run the code which is below this continue, you will jump back to this for loop again and go to the next value in the sequence. Okay, ये नीचे का प्रिंट नहीं होगा, फिर नीचे का एग्जीक्यूट नहीं होगा, you'll just jump back to the for loop और जहां पे कंटिन्यू हो रहा था वहीं से कंटिन्यू करना शुरू कर दोगे। अगर आप थर्ड थर्ड आइटम पे थे सीक्वेंस के, तो थर्ड आइटम
से फोर्थ आइटम पे जाओगे एंड देन यू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग, ठीक है। कंटिन्यू का काम वो होता है, यू विल नॉट ब्रेक आउट बट यू विल कंटिन्यू योर लूप, बट यू विल नॉट रन द कोड विच इज बिलो दिस कंटिन्यू स्टेटमेंट। सेम थिंग फॉर द व्हाइल लूप, अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो मैं कंटिन्यू बोलता हूँ, तो कंटिन्यू ऐसे बाहर जाके फिर से व्हाइल लूप के पास पहुंच जाता है कंट्रोल मेरा। Okay? So those are the two things that I wanted to revisit for break and continue. I think some of you had some questions about that. All right, let me now stop the recording.